आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी आपको. ओके एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ गुड. अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम समटाइम मोस्टली लोग जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो द जीडीसी प्लेटफॉर्म के स्लाइड का साइज़ बहुत छोटा आता है. सो आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इवन के चैट को भी आप साइड पे कर दो बट द साइज इज स्टिल द सेम. आप जूम इन करो तब भी इतना ही है. सो यू जस्ट हैव टू बियर, बट डोंट वरी. जो आपकी स्लाइड जो मैं प्रेजेंट करूँगा, यू विल गेट द स्लाइड ऑन द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म. आपको इनके जो ऑफिशियल पेजेस होंगे, ठीक है, ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक और इवन के व्हाट्सएप ग्रुप अगर कोई इनके हैं, तो यू विल गेट द स्लाइड देयर. So just don't worry about the slide. So just let me share the another one. Let me take a look. Okay, I hope you can see it now. बस ये है कि अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा तो वो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी. सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम. आई होप बेटर होगा. सो वी कैन जस्ट गो दिस वे इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ. ओके, सो माय नेम इज जैन, Ali Zain Naqvi, mostly which is Zain कहते हैं. The topic of today is web penetration testing. So we will try to explore the cybersecurity and some important facts and stuff that we should know before we are getting into cybersecurity, and after that we will go into the web penetration testing. So we will talk about some life cycles, some standard, some tasks that we have to do as a pen tester, and some even technical stuff about the web penetration testing. So because this is a 3 days event, so we can divide everything among between three events. So in the next event, we will talk about some advanced and hands-on stuff, and after that, we will be even having some sort of challenges as well. So even you will get to have an idea and experience on the hands-on solving the web penetration testing stuff. So I'm founder of SecurePan as well. I'm working as a security engineer previously as well. So I'm currently I have joined Trillium as a project manager for the cybersecurity projects, and since 2019 I'm working in the communities. So in 2019 I joined the Google SC, GDSC program जो कि पाकिस्तान में first time launch हुआ था, and I'm from the first GDSC batch of Pakistan. So after that, I joined the different Google communities and several other communities. So it's been 4 years almost working actively in the communities. ओके, सो अनदर टिप कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, सो जो है वो आप क्यूए के सेक्शन में डालें. सेकेंडली, जो क्वेश्चन मोस्टली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होंगे उनको हम कम ही आंसर करेंगे. इफ़ वी हैव टाइम, सो ओनली देन वी गेट आंसर. अदरवाइज जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को इतना प्रेफर नहीं करेंगे. So, introduction to cybersecurity. Most of the people you know about what is cybersecurity as general. So, cybersecurity is basically a practice of protecting the system, your infrastructure, your data that you have or you contain in the organization. So, cybersecurity becomes very important for all of the businesses because इस टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्रियल है, जितना भी वर्क चल रहा है, so they always have some sort of data or some sort of infrastructure that is sensitive to them, और वो काफ़ी इस मामलों के लेके मोस्टली possessive भी होते हैं. So what happens कि there are some bad actors who can provide or do some sort of damage to the data, or they can steal it. तो जिन possibilities की base पे they have to save and secure it from the hackers or the bad actors. So when you talk about the technologies, it is always the data that is basically insecure by the hackers. Normally क्या होता है कि हमारे पास चोर होते हैं, ठीक है, there may be a chance of heist, but in cybersecurity or in the IT, we always have the attack of hacking. सो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट एरियाज में वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड में वेरी कर सकते हैं. इवन के सम टाइम वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं, एंड सम टाइम वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, लाइक सिंपल पर्सन. सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक कंपनी को डैमेज करने के लिए किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है, लाइक उसका सीईओ, उसका को फाउंडर या एनी पर्सन, जिसको कैरी करने के बाद वो उससे आगे फर्दर एक्सप्लोटेशन करते हैं या अपना एम कंटिन्यू करते हैं. So we will talk about cybersecurity. What exactly is the cybersecurity? So this is the most important slide जो कि आपको मेरी हर एक presentation में मिलेगी. Why? Because 80 to 90% of the people even don't know what exactly cybersecurity is. So people think
that cybersecurity is a single domain, but no, this is incorrect. आपने कभी ये देखा है कि आपने आईटी पे काम किया हो सीएस में, एंड देन यू से दैट आई हैव गॉटन अ जॉब एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और सीएस? नो, आपको सीएस की जॉब टाइटल में कोई जॉब नहीं मिलती. सो यू ऑलवेज हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइटल, जिसमें क्या आ जाता है कि मे बी यू आर अ वेब डेव, मे बी यू आर एंड्रॉयड डेव, मे बी यू आर एमएल इंजीनियर, द क्लाउड इंजीनियर, एक्सेट्रा. सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी में भी इसी तरह की मल्टीपल डोमेन्स होती हैं. सो जैसे सीएस एक अम्ब्रेला है, ठीक है, वैसे प्रोबेबली समहाउ देखा जाए तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर एक अम्ब्रेला है. बट सीएस यानी साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगेन से एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है. इसके अंदर 5 मेजर डोमेन आ जाती हैं, दैट इज रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन एंड वाइट. सो नाउ वी नो दैट साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड नहीं है, एक जॉब नहीं है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है. ठीक है, उसमें हमारे पास 5 मेन डोमेन्स हैं. इनके साथ मोस्टली जो टेक्निकली या जो मोस्टली कम्युनिटी में या इंटरनेट पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज टीम. सो रेड टीम, ब्लू टीम, पर्पल टीम, ग्रीन टीम एंड वाइट टीम. So we shall try to get on the very basics and very in an easy format. So ये सबसे simplest and easy format है. Why? Because when you search for the red team on the internet, you exactly get the technical stuff that you want. Normally क्या होता है कि आप ethical hacking and cyber security से content search करते रहते हैं, but you don't find the correct content. So that's the problem, that you are not using the technical content. So this slide will help you a lot in finding the technical content. So let's a bit talk about red. So what is red team? Red team is basically in simple form offensive team. They are attackers. इनका काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड सरफेस एरिया जो उनको प्रोवाइड किया जाता है उस पर अटैक करना. अटैक करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि दे कैन सक्सेसफुली अटैक, एक्सप्लॉइट एंड गेन एक्सेस टू द सिस्टम, जिसमें हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल डोमेन्स आ जाती हैं. बट इनका जो मेन टारगेट और कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑलवेज एज अटैकर. अब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, वो किसी भी वे में कर सकते हैं. देन वी हैव द ब्लू टीम. सो व्हाट हैपेंस इन द ब्लू टीम इज कि ब्लू टीम आर अगेंस्ट द अटैकर्स. सो इनका काम होता है कि रन टाइम पर कंपनी को सेव करना. सो ये एक्टिवली कंपनी को देख रहे होते हैं कि उसमें कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन सी जा रही है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेड टीम का पर्सन है कि जो एथिकली एक वायरस मेलवेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल कर देता है, एंड वन समवन रन्स इट, ब्लू टीम इज द रिस्पॉन्सिबल कि उनको पता हो कि कौन सा बंदा क्या एक्टिविटी कर रहा है, एंड मेलवेयर रन होता है, एंड मेलवेयर ट्राइज टू कंटेक्ट द हैकर, द रेड टीम. सो ब्लू टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना जो सिस्टम्स को मॉनिटर करे बल्कि जाने वाली ट्रैफिक को भी, एंड दे आइडेंटिफाई कि ये जो ट्रैफिक जा रही है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड ये सही ट्रैफिक नहीं है. सो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इसमें क्या है. अच्छा, ये तो किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है एक अनएथिकल वे में, जो कि एक सिस्टम जो है वो कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है, जिसका यही मतलब है कि ये कोई हैकर है, ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका कोई भी प्रॉपर नाम नहीं है. सो इनका काम होता है कि एक्टिवली उसके अगेंस्ट उसको रोकना. देन वी हैव द पर्पल टीम. सो व्हाट हैपेंस कि ब्लू उसको ना पकड़ सके, मिस कर जाए, एंड रेड पर्सन जो है वो उसको, रेड टीम उसको एक्सेस गेन कर ले. सो व्हेन रेड टीम सक्सेसफुल हो जाती है, सो ब्लू टीम के हाथ से गेम जा चुकी होती है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी हद तक वो चीज़ को लूज कर चुके होते हैं. सो ऑन दैट लेवल द पर्पल टीम कम्स इन. सो पर्पल टीम का काम क्या होता है कि व्हेन द अटैक हैपेंस, ये जो अटैक जो होता है वो एक सक्सेसफुल रेट पे हो चुका होता है. सो दे आर मेनली द वी कैन से लाइक एनालिस्ट. सो एनालिस्ट कम्स टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट द अटैक. ये ना जस्ट अटैक जो होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उसको रन टाइम पर रिस्पॉन्ड करना होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर चोर जो है वो घर में आ चुका है, तो अब उसको किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है. वेदर आप जो है वो कुछ लॉक लगा देते हैं रूम्स को इमीडिएटली. नॉर्मली रियल लाइफ में क्या होता है कि आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसकी बंद कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऑफलाइन कर देते हैं, सिस्टम को डाउन कर देते हैं, एंड जो मेन ट्रैफिक वहाँ से आ रही होती है हैकर की, उसको दूसरे सिस्टम की तरफ उसको ले जाते हैं, ताकि हैकर को ये महसूस ना हो कि एक्चुअल सिस्टम डाउन हो चुके हैं, एक थर्ड पार्टी सिस्टम है कि जिसमें कोई खास डेटा नहीं है, जस्ट फेक डेटा है, एंड वो उसको एक्सेस कर रहा है. उसके अलावा अगर वायरसेस मेलवेयर उनको मिलते हैं, ठीक है, तो वो मेलवेयर के ऊपर चेक करते हैं कि मेलवेयर की इंटेंशन क्या थी, वो क्या क्या डैमेज दे रहा था. हो सकता है कि मेलवेयर ने मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई हों, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना. सो ये मेजर जो है वो पर्पल टीम का काम होता है, एंड आई हैव एक्टिवली वर्क इन रेड एंड पर्पल टीम. देन ग्रीन एंड वाइट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज वी हैव टू कवर एवरीथिंग ऑन टाइम. सो स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगी, सो यू आर लाइक फील फ्री टू सर्च देम ऑन द इंटरनेट.
ओके, सो रेड टीम में हमने देखा था, ठीक है, पहली चीज़ थी हमारे पास पेन टेस्टर। सो पेन टेस्टर जो है दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड वी विल एक्टिवली टॉक अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि इंटरनेट इशू आ रहा है, सो कैन आई नो दैट क्या, सॉरी, वॉइस इशू। सो एग्जैक्टली क्या वॉइस इशू आ रहा है? आपको लैग आ रहा है, आवाज़ नहीं है क्या? ओके, सो प्रोबेबली आपका इंटरनेट का इशू होगा। ओके, थैंक्स टीम फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके, so introduction to penetration testing. So who is a penetration tester? Penetration tester, as we talked about, okay, they are always the attacker. So penetration tester is actually the ethical hacker. So penetration tester जो होता है वो basically cyber attacks perform करता है, उनको simulate करता है, but always in a controlled environment. So ethical hacker exactly knows कि what he is doing. Like for example, आपके पास वायरसेस आपने ऐसे देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वायरसेस मिलते हैं कि जो डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, और आजकल पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से मोस्टली लोग इससे इफेक्ट भी होते हैं। सो एक पेन टेस्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी पेन टेस्टिंग में रैंसमवेयर या जो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस है उसको भेज दे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे तो डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा और सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। सो ये काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करता है ताकि कोई भी डैमेज भी ना हो, कोई भी इवन के वर्किंग या जो आम सिंपल फ्लो है वो भी ख़राब ना हो। तो पेन टेस्टर जो होता है वो उसका काम होता है कि वल्नरेबिलिटीज निकालना। एंड नाउ द वल्नरेबिलिटी इज अनदर टेक्निकल वर्ड। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि व्हेन यू फाइंड ए वीकनेस इन द सिस्टम, इन द एप्लीकेशन, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कोड की फॉर्म में मोस्टली इशू, एरर या कोई इस तरह की चीज़ कहलाती है जिनका इम्पैक्ट सिक्योरिटी पे होता है। फॉर एग्जांपल कि एक फ्रंट एंड का पेज है, उसके जब फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं तो उसका साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। सो यू कैन से कि ये एक इशू है, बट इस इशू का कोई सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट नहीं है। मीनवाइल अगर आप डेटा सबमिट कर रहे हैं, आप डेटा किसी और के बिहाफ पे सबमिट करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी इम्पैक्ट। ओके, सो सिक्योरिटी इम्पैक्ट जब बग का होता है, वल्नरेबिलिटी यानी इशू का, उसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ये एक टेक्निकल वर्ड है। सो व्हेन एवर यू फाइंड द वल्नरेबिलिटी टेक्निकल वर्ड, तो आपको नेट पे बहुत यूजफुल डेटा मिल जाता है। ओके, सो होता क्या है कि पेन टेस्टर को एक स्कोप डिफाइन किया जाता है। सो व्हाट इज द स्कोप? स्कोप पेन टेस्टिंग की डोमेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है। स्कोप क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि यू हैव 2 वेबसाइट्स, ठीक है, एंड 4 एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू टेस्ट। सो इसको एक स्कोप डिफाइन कर दिया गया है कि इसने किस चीज़ को क्या-क्या टेस्ट करना है। अब ये उस टेस्टिंग स्कोप से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये बाहर जाता है, उससे किसी और एप्लीकेशन को टेस्ट करता है जो कि इनके साथ लिंक्ड है बट इसके स्कोप में डिफाइन नहीं थी। सो क्या होता है कि वो एक पेन टेस्टर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी डैमेज, कुछ भी चीज़ हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल यही होता है। सो एक हैकिंग होती क्या है कि अनएथिकल एक्सेस, या आप कह सकते हैं कि सिस्टम को एक्सेस करना जिसके लिए आप अलाउड ही नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, सो वेब पेन टेस्टिंग की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वेब पेन टेस्टिंग। सो जस्ट कंप्लीटिंग द थ्योरी एज क्विकली एज पॉसिबल। सो वेब पेन टेस्टिंग में होता क्या है कि आपको वेब एप्लीकेशन में से निकालने पड़ते हैं बग्स, ठीक है। तो आपको वल्नरेबिलिटीज निकालनी पड़ती हैं। बग्स कौन से कि जिनका सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होता है। जब एक बग का सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा तो वो वल्नरेबिलिटीज बन जाएगी। सो वेब पेन टेस्टिंग में मोस्टली आ जाता है, वेबसाइट्स आ जाती हैं हमारे पास, लाइक वेब की सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल हमारे पास कुछ सर्विसेज वेब पे अवेलेबल होती हैं, वो सारी आ जाती हैं, भले ही वो पीछे जिस प्लेटफॉर्म पे भी चल रही हैं। And then we have the web APIs. So web APIs nowadays are most important and even a hot topic we can say, because Akamai जो firewall है उनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, and they said कि 80% of the traffic that they have in a year or in a day, और जो भी आप कहिए, 80% की ट्रैफिक जो होती है that is always the API. So API becomes so important, and API की टेस्टिंग जो है वो एक पेन टेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे पास मल्टीपल टाइप की वल्नरेबिलिटीज आती हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल इश्यूज होते हैं। सो वेब में मोस्टली जो लाइक मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर जो हमेशा से रही हैं एंड जिनका सबसे ज़्यादा नाम है, ठीक है, दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एंड हमारे पास और भी मल्टीपल हैं, तो हम लोग कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात भी करेंगे कि जो लिटिल बिट ईजी टू फाइंड है। ओके, सो देन हमारे पास 3 टाइप की टेस्टिंग आती है। रिमेंबर कि जब भी आप टेस्टिंग को पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट भी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उसमें हमेशा 3 तरह की टेस्टिंग्स आती हैं, दैट इज ब्लैक बॉक्स, ग्रे एंड वाइट बॉक्स। सो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वेबसाइट, आपको कोई भी इसके बारे में नहीं बताया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम्पल abc.com है,
आपने इसको टेस्ट करा। नाउ यू डोंट नो कि व्हाट इज एग्जाम्पल abc.com। आपको क्या होता है कि आप इंटरनेट पे जाते हो, यूज गूगल इट, यू सर्च इट, आप उसके बारे में पढ़ते हो, वेबसाइट खोलते हो कि ये करती क्या है, आपको पहले समझ आए। देन उसके बाद आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखते हो कि अच्छा फॉर एग्जांपल फेसबुक की तरह एप्लीकेशन है, तो इसमें आप चैट कर सकते हो, इसमें आप स्टेटस पोस्ट कर सकते हो, वो डेटा सबको शो होता है, आप दूसरे की पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। ओके, तो सिमिलरली हमारे पास वाइट बॉक्स जो होता है, वाइट बॉक्स में क्या होता है कि यू हैव एवरीथिंग। इवन कि आपको वेबसाइट के एंड पॉइंट के बारे में बताया जाता है, आपको सोर्स कोड दिया जाता है और आपको हर एक चीज़ बताई जाती है वेबसाइट के बारे में। जब आपके पास सोर्स कोड आ जाता है तो आपके पास सारे एंड पॉइंट आ जाते हैं, आप सारी फंक्शनैलिटीज़ को देख सकते हो कि उसमें क्या क्या है। सो बीच में ब्लैक एंड वाइट के बीच में आता है ग्रे। सो व्हाट इज ग्रे? ग्रे इज द कम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। सो इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड कुछ नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल abc.com है, आपको नहीं पता कि इसका एडमिन पैनल कहाँ पे है, ठीक है? तो कंपनी आपको बताती है कि वी वांट कि आप एडमिन पैनल को स्पेसिफिकली टेस्ट करें। उसके लिए है admin1@admin1.example.abc.com। अब आपको नहीं पता था कि abc.com/admin पे है या कहाँ पे है, तो वो उनके बताने से पता लगे कि admin1 डॉट आगे इस तरह करके कुछ है। तो अब उन्होंने आपको ये चीज़ बता दिया। देन हो सकता है कि वो आपको एडमिन के जो अकाउंट्स होते हैं आपको वो भी दे दें। तो क्या होता है कि अब आपके पास एडमिन अकाउंट है और जो नॉर्मल यूज़र अकाउंट है, आपको ये इन्फॉर्मेशन, उनके पासवर्ड क्रेडेंशियल आपको दे देंगे एंड कहेंगे कि अब आप टेस्ट करें, ताकि आपके लिए टेस्टिंग जो है वो ईजी हो। ये क्या होती है? ये हमारे पास वाइट एंड ब्लैक के दरमियान आती है ग्रे बॉक्स। ओके ओके सर, मैं जस्ट पानी पी लूँ। ओके सॉरी। सो सिक्योरिटी के अंदर मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। सो वाई? डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जूनियर्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारे, आप कह सकते हैं, काफ़ी एक्साइटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, दे ट्राई टू स्किप लॉट ऑफ स्टफ एंड जंप इनटू द सिक्योरिटी डायरेक्टली। सो आप देख रहे हैं कि एक साइड पे इमेज है, दूसरी साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि आईटी वर्सेस आईएस। सो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो अगर आप देखें कि पहले क्या आया था, एग्जांपल है ना कि सबसे पहली चीज़ इन दोनों में से क्या आई थी। वी नो कि सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, टेक ग्रो करने शुरू किया, देन उस टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। सो उस टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स आए, कुछ वेज आए, कुछ टेक्निक्स आई। उन टेक्निक्स को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। जब आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है तो यू डेफिनेटली नीड टू स्टडी द आईटी फर्स्ट, कि आप जिनके ऊपर वो टेक्निक अप्लाई करने वाले हो वो हैं क्या, आपकी टेक्निक कैसे काम कर रही है वहाँ पे। सो आपको जब कोई न्यू चीज टेक्निक बनानी होती है, कुछ नया आपको फाइंड आउट करना होता है, सो उसके लिए आपको प्रॉब्लम आते हैं बिकॉज यू इवन डोंट नो कि आईटी में है क्या। इसकी एग्जांपल है कि गाड़ी है, ठीक है, आपको गाड़ी के इंजन है, आपको उसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम निकालनी है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि इंजन काम कैसे करता है, उसके इंटरनल्स क्या हैं। हो सकता है कि उसके इंटरनली किसी एक पार्ट के अंदर जो है या आर्किटेक्चर में कोई इशू हो। सो सिमिलरली आपको आईटी के बारे में भी इसी तरह से पहले अच्छे से पता होना चाहिए। सो राइट साइड पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक्सपर्ट हैकर बनने की वो कोशिश कर रहा है, बट व्हाट इज डूइंग कि ये इंट्रोडक्शन टू आईटी, ये प्रोग्रामिंग, ये नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों को छोड़कर वो डायरेक्टली ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहा है। सो ये मेन प्रॉब्लम आता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मुझसे बात भी कर रहे होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप पहले चीज़ें समझो कि हाउ थिंग्स वर्क। अपने वेब सिक्योरिटी में जाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज वेब। ओके, सो हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एक लाइफ साइकिल देखते हैं कि आप कोई भी पेन टेस्टिंग करते हैं, सो यू ऑलवेज हैव अ सेम लाइफ साइकिल। सो इसमें होता है क्या, इसको टैकल कैसे करना है, इसमें क्या काम करना है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आपके पास पहले स्टेप में होता है प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग में क्या होता है कि आप देखते हो कि आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने टेस्टिंग जो करनी है, ठीक है, उसमें होना क्या है, ठीक है, उसमें स्टैक स्टैक आपके क्या हैं,
आपने किस चीज़ को टेस्ट करना है, आपके पास वेब एप्लीकेशन है, एपीआई गिवन है, ठीक है, तो आप उसके बारे में प्लान करते हो। जब आप प्लान कर लेते हो तो आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। सो टारगेट के बारे में आप उसको पढ़ते हो, टारगेट को आप खोलते हो, ठीक है, उसके बारे में आप नेट से पढ़ते हो, आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में देखते हो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट तरह के जगहों से डेटा इकट्ठा हो जाता है बहुत से। सो नाउ यू लिटिल बिट नो अबाउट योर टारगेट कि आपने किस पे टारगेट करना है, ठीक है। तो आपके पास प्लानिंग जो होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। आप वेबसाइट के साथ रिक्वेस्ट करते हो, उसको डिफरेंट जगहों पर आप डेटा सेंड करते हो, आपके जो जो नॉर्मल इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं आप उनको यूज टू होते हो उनके साथ, और आपको समझ आता है कि ये इंटरनली काम कैसे कर रही हैं, मेरे किस डेटा पे ये कैसे बिहेव कर रही हैं एंड क्या क्या चीज़ें। इससे आपको वेबसाइट का पूरा बिहेवियर जो होता है वो समझ आ जाता है। जब आपको वेबसाइट की एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये किधर किधर क्या क्या काम कर रही है, देन यू स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन। सो आपको पता लग जाता है कि इसकी ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसमें ये फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। सो उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो टेस्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज आप थर्ड स्टेज में रहकर आप एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। सो आप जब टारगेट एक्सप्लॉइट कर लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद जो है वो आप पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं कि जो आपने वेलेबिलिटी निकाली है, क्या जो है वो आगे फर्दर एक्सप्लॉइट हो सकती है या नहीं, या जो है मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकता हूँ या नहीं। सो एज अ पेन टेस्टर जो होता है वो आप इवन के एक्सेस मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप आगे फर्दर उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया, सो आप मल्टीपल यूज़र को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आप एडमिन को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एडमिन भी एक यूज़र होता है। तो आप इस तरह से पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की तरफ चलते हैं। So once you are done with it and you know that you have successfully exploited several areas of the application, then it's time to patch everything. So sometimes mostly बल्कि यही होता है कि दूसरी टीम होती हैं, ब्लू टीम के devs होते हैं कि जो उसको पैच कर रहे होते हैं, and once they patch it then you like configure the firewall, you test everything again. So आपको क्या होता है कि टेस्टिंग अगेन करने से आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है कि क्या वो वेलेबिलिटीज एक दोबारा से उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। अगर नहीं करेंगी एंड यू आर एक्टिव पेन टेस्टर फॉर दैट कंपनी, तो आप अगेन से वो पेन टेस्टिंग का जो होता है फेज वो स्टार्ट करते हैं, ट्राई टू फाइंड सम अदर वेज। सो ये इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है या आप कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं पेन टेस्टिंग का, देन वंस द पेन टेस्टिंग इज डन यू आर गुड टू गो। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, हमारे पास हम जानते हैं कि द वेब फॉर एग्जांपल अगर हमें दी जाती है एग्जांपल abc.com, सो व्हाट इज ऑल दैट वी हैव, ठीक है। सो व्हाट एवरीथिंग दैट वी हैव इज वी हैव द http, ओनली http, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ वेबसाइट है, हमारे पास सोर्स कोड नहीं है। सो जब हमें उस वेबसाइट को टेस्ट करना है, उससे कम्युनिकेट करना है, हमारे पास सिर्फ हमारे पास सिर्फ क्या होता है कि http कम्युनिकेशन ही होती है। तो हम लोग सिर्फ ट्रैफिक को देख सकते हैं और हम ट्रैफिक की बेस पर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा कौन सा डेटा किस फॉर्म में क्या है एंड वो डेटा हमारे किस फॉर्म में वापस आ रहा है या उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सो HTTP के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है, जो ब्राउज़र होता है या जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, सो क्लाइंट हमेशा करता है रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में। सो हमेशा रिक्वेस्ट करता है एंड जो वेब सर्वर होता है वो उसको प्रोसीड करता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका एक जवाब बनाता है, रिस्पॉन्स बनाता है एंड वो रिस्पॉन्स वापस हमें भेज देता है। सो इससे हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि हो क्या रहा है, बेसिकली हम रिक्वेस्ट करते हैं एंड हमें रिस्पॉन्ड आता है। फॉर एग्जांपल ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गूगल आपको रिक्वेस्ट करे एंड गूगल को आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नहीं, हमेशा गूगल को आप रिक्वेस्ट करते हैं, गूगल आपको रिस्पॉन्स देता है। जो आपको फॉर्म वगैरह देता है वो भी रिस्पॉन्स की फॉर्म में, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करके आप रिक्वेस्ट भेजते हैं अगेन से, वो फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाता है एंड वो जो होता है वापस रिस्पॉन्स में आ जाता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली HTTP वर्क्स। अगर हम लोग HTTP रिक्वेस्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो HTTP काम कैसे करती है। वेब पेन टेस्टिंग में HTTP आप ऐसे समझ लें कि ये 80% ऑफ द एरिया जो है वो HTTP कवर कर रही होती है एंड पूरी पेन टेस्टिंग में HTTP की इम्पोर्टेंस जो है वो भी 70 to 80% है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी लाइक आप कह सकते हैं एसेंशियल है
फॉर द वेब टेस्टर्स. सो वेब पेन टेस्टिंग में, सॉरी, HTTP में होता क्या है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक API स्क्रिप्ट, और मे बी द यू हैव द UI एक्टिविटी. आपको कुछ फ्रंट एंड से कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ फॉर्म सबमिट हो रहा है, और एनीथिंग जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो कि जो कि वेब सर्वर की तरफ जाना है, तो क्या होता है कि वो सारे के सारे एक्शन की ट्रांसलेशन करता है एंड कन्वर्ट उसको करता है HTTP रिक्वेस्ट में. देन HTTP रिक्वेस्ट आगे फर्दर जो है वो फ्रेम में की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर भी उसको अगेन से कन्वर्ट करता है HTTP रिक्वेस्ट में. HTTP रिक्वेस्ट करके कन्वर्ट, देन वो उसको रीड करता है, रीड करके वो एग्जीक्यूट करता है. ओके, आप देखेंगे जो रीड करने का तरीका कार होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आप शुरू से लिखते थे एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में क्या होता है कि उसका एक फॉर्मेट होता है. अगर आपको देखना है कि मुझे किस बंदे ने भेजी है एप्लीकेशन, उसका नेम क्या है, सो हमेशा आप एक स्कूल एप्लीकेशन में सबसे आखिर में देखते हो कि योर्स ओबीडियंटली या कुछ इस तरह का वर्ड लिखा होता है. उसके बाद जो पहली लाइन है वो उसका नेम है. फॉर एग्जाम्पल वो किसी और लैंग्वेज का नेम है, आपको नहीं पता कि इनमें से नेम कौन सा होगा, सो यू एग्जैक्टली नो कि इस लाइन के बाद आपका नेम आता है. सिमिलरली HTTP रिक्वेस्ट में भी ऐसा ही होता है. हर एक लाइन का एक मीनिंग होता है और उसकी एक प्लेस होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पहली लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो पहली लाइन हर रिक्वेस्ट में आपको यहीं पे दिखाई देगी, बिकॉज सर्वर जो होता है उसको पता होता है कि HTTP रिक्वेस्ट का यही फॉर्मेट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि आपको राइट फॉर्मेट के बारे में पता हो. सो HTTP रिक्वेस्ट का एक राइट फॉर्मेट क्या होता है कि जो पहली लाइन होती है उसकी, उसको जो पहला वर्ड होता है दैट इज गेट. यहाँ पे GET गेट. गेट में क्या है कि जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है उसकी एक टाइप होती है. आप सबसे पहले ये डिफाइन करते हो कि मुझे चाहिए, मुझे करना क्या है. मुझे कुछ डेटा तुमसे चाहिए. जैसे आप गूगल है, आपको google.com करते हो तो आपको google.com का पेज चाहिए, ठीक है. सो आपको पेज चाहिए या आपको कुछ डेटा भेजना है और सबमिट कराना है. फॉर एग्जाम्पल आपने साइन इन किया है, सो साइन इन के लिए क्या है, ये आप यहाँ पे चैट कर रहे हो, तो चैट में क्या है कि आपने लिखा और वो डेटा सबमिट हुआ है, आपकी तरफ से कुछ डेटा गया है, तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजनी है दैट इज पोस्ट. तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा कि आपका डेटा सबमिट हो रहा है. राइट आफ्टर दैट दिस कीवर्ड गेट के पोस्ट या जो भी, जिसके बारे में हम लोग आगे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं. देन उसके बाद आता है उसका एंड पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि google.com/age/event, फॉर एग्जाम्पल age/event. सो जो age/age/event होता है ये पहले डिफाइन किया जाता है google.com से भी पहले HTTP रिक्वेस्ट के अंदर. सो हमारे पास जो अगला कंटेंट आ जाता है देन उसके एंड पॉइंट आ जाते हैं कि जो मेन डोमेन है google.com, उसके बाद स्लैश के बाद कौन कौन सी एंड पॉइंट आने हैं. देन उसके बाद हमारे पास आता है HTTP का वेरिएंट. आपको आजकल बड़ी वेबसाइट पे मोस्टली जो देखने को मिलता है दैट इज HTTP 2, बट आपको अभी तक जो है वो 1.1 भी देखने को मिलता है. 1.1 बहुत अरसे तक यूज़ होता रहा है, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ है कि वो HTTP 2 आया. देन वी हैव द होस्ट हेडर. तो होस्ट जो है इसका आगे दो कॉलर एंड देन एक स्पेस होती है एंड देन आगे वेबसाइट का नेम होता है कि जो मेन आपकी वेबसाइट है. अगर हम गूगल को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा google.com. अब वो हर जो सर्वर होता है उसको फॉर्मेट होता है. कुछ होते हैं कि जो google.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि लाइक जो सिर्फ example.com या जिस तरह से ये लिखा हुआ है www.example.com. इवन के समटाइम कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो http:/example.com इस तरह के लिख के भेजती हैं. देन उसके बाद क्या होता है कि इंक्लूडिंग होस्ट एंड बाकी सारे ये हमारे पास हेडर्स हैं. सो हेडर की जो वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप हेडर जो है वो एक स्टेप बाद डाल दें. इसको पता है कि पहली लाइन तो रिक्वेस्ट लाइन है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ तक ये सारी हेडर्स हैं. सो हेडर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. मैं आपको एक लिंक दूंगा कि जिसके अंदर जो है वो आप हेडर्स के बारे में डीपली पढ़ सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अ ब्लैंक स्पेस. अगर आपके पास रिक्वेस्ट है गेट, सो गेट रिक्वेस्ट में मोस्टली ये होता है कि डेटा आपका सबमिट नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये एक एग्जांपल रिक्वेस्ट है. सो नीचे जो होता है हमारे पास रिक्वेस्ट का डेटा दिया गया है दैट इज बुक ID एंड देन ऑथर. ऑथर का आगे नेम दिया हुआ है. सो आपके पास जब हेडर के बाद एक स्पेस आती है, सो इट मीन्स कि स्पेस के बाद या तो रिक्वेस्ट खत्म हो रही है या तो कुछ डेटा है. अगर तो डेटा है तो वो डेटा सर्वर में सबमिट होने के लिए आया, उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होना है. ओके, सो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास तीन पार्ट हैं, ठीक है. द रिक्वेस्ट हेडर्स एंड देन द कंटेंट जो कि हम लोग भेजने जा रहे हैं. जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं
So you always get a response. Okay. सो रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स मोस्टली HTML या JSON फॉर्म में आता है. अगर आपके पास API के इंटरेक्शन है, सो यू आर प्रोबेबली सपोज टू गेट द JSON रिस्पॉन्स. अगर आप नॉर्मली वेबसाइट सर्व कर रहे हो डायरेक्टली, वो कोई API का एंड पॉइंट नहीं है, सो देर आर मोर चांसेस कि यू विल गेट द सिंपल HTTP और HTML पेज. सो होता क्या है कि व्हेन यू रिक्वेस्ट अ वेबसाइट दे रिस्पॉन्ड इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट. सो पहली लाइन में क्या होता है कि ऑलवेज द HTTP वेरिएंट, जो कि हमारे पास जहाँ पे 1.1 है, बट आपको मोस्टली वेरिएंट 2 देखने को मिलेगा. सो HTTP/2. देन उसके बाद आता है हमारे पास उसका स्टेटस कोड. सो 200 जो है ये स्टेटस कोड है. जो मैं आपको लिंक दूंगा उसके अंदर आपको स्टेटस कोड के बारे में भी सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि स्टेटस कोड होता क्या है. सो स्टेटस कोड आपको बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट का जो सर्वर ने रिस्पॉन्ड दिया है उसका माना क्या है. 200 का मतलब है कि एवरीथिंग ओके, जो आपने मांगा था वो मिल गया. 404 आपको देखने को मिलता है मोस्टली. 404 का मतलब ये होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आपने सही जगह पर रिक्वेस्ट नहीं की. 403 का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट करती है बट आपको वो अलाउड नहीं है, वगैरह वगैरह. देन आपके पास हेडर्स आ जाते हैं. हेडर्स होते हैं वो मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्वर से लेकर आते हैं, जो कि पेन टेस्टर को चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सर्वर दिया हुआ है हेडर है, ठीक है. हेडर में से जो सर्वर का हेडर है, जो कि सेकंड लाइन बनती है सर्वर, सॉरी हेडर्स के बॉक्स में, उसमें लगा हुआ है अपाची 2.2.14 32 बिट यानी 132. ओके. सो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि हमारे पास अपाची 2.2.14 है. सो यू विल इमीडिएटली स्टार्ट टू लुक फॉर द सिक्योरिटी इश्यूज एंड अवेलेबिलिटी, जो कि अपाची 2.2.14 में फाइंड आउट होंगी. अगर तो कोई एग्जिस्ट करती हैं, सो आप डायरेक्टली जो है सबसे पहले उन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करोगे. एंड देन सिमिलरली जैसे हमने रिक्वेस्ट में भी देखा था, हेडर्स के बाद एक स्पेस आती है एंड स्पेस के बाद का जो कंटेंट होता है दैट इज द HTML कोड, या कोई भी चीज़ होती है जो कि ब्राउज़र की एंड से होती है, ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करके आपको शो कराता है. सो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हैं. वी हैव गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो कि आपको मोस्टली देखने में मिलती हैं. बाकी आपको हेड एंड बहुत सारी मिल जाएंगी, तो आप इनको खुद देख सकते हैं कि इसमें है क्या क्या, एंड आप इनको बारे में पढ़ सकते हैं. दोनों अपने पेजेस में यही दी हुई, बिकॉज आप स्लाइड आपको मिल जाएंगी, सो यू कैन गेट इनटू इट. ओके. सो आपको अगर और चीज़ें पढ़नी है तो ट्राई हैक मी का मैंने एक लिंक यहाँ पे ड्रॉप किया है. सो ट्राई हैक मी का जो कुछ कंटेंट है वो पेड है, मगर कोई एक पेज मुझे दिखाई दिया था इसका जो कि फ्री था. सो उसमें फंडामेंटल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. सो आपको ये स्लाइड जब मिलेगी तो आप इसमें लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं. ओके. सो अब जो है वो हमें बेसिक्स का आइडिया हो चुका है कि बेसिक्स में हम लोगों ने क्या क्या काम पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें ठीक है वो देखी. सो अब जो है हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ निकलते हैं. सो वी टॉक अबाउट अवेस्प. सो अवेस्प है क्या? सो OWASP, ठीक है. अवेस्प, अवेस्प बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि एक वेब पेन टेस्टिंग, सो बेसिकली मोर इनटू एप्लीकेशन सिक्योरिटी की तरफ जो है, एक एप्लीकेशन का एक फ्रेमवर्क है टेस्टिंग का. सो अवेस्प एक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. अवेस्प में आपको मिलता क्या है, आपको टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी गाइडलाइन मिलती हैं, आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है, आपको फॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं कि जिनको आपने यूज़ करना होता है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जो अवेस्प को फॉलो करती हैं, एंड जो भी इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, उससे वो अवेस्प के बारे में लाजमी पूछती हैं कि आपको अवेस्प के ऊपर कितना हैंड्स ऑन है. वेब जो है वो पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग के साथ स्पेसिफिकली बहुत पुराना इनका इंटरेक्शन है. इवन कि अगर आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्डिंग के टाइम पे भी आपको वेब जो है वो हेल्प आउट करता है कि बिल्ड कोड करते वक्त आपको किन किन स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क का चीज़ों के ख्याल रखना है. सो उसमें हमारे पास सैनिटाइजेशन एंड और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि जो आपको फॉलो करने होते हैं. जो अवेस्प है वो शुरू से टॉप 10 आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि 1-2 सालों में जो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ वेब के अंदर फाइंड आउट की गई हैं उन सबको दुनिया से वो इकट्ठा करता है, एंड उनके ऊपर एक वो लाइक एनालिसिस आप कह सकते हैं वो करता है कि हमारे पास कौन सी टॉप 10 अवेलेबिलिटीज़ हैं कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट वाली फाइंड आउट हुई हैं. तो जिससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी गाइड मिलती है कि आपको किन वल्नरेबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए. देन इनकी एक बुक भी है, ठीक है, जो आपको वेब टेस्टिंग गाइड के नाम से मिलती है. हम इंशाल्लाह सेकंड या थर्ड इवेंट पे मैं आपको ये बुक भी प्रोवाइड करूँगा. मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है, मेरे पास जो वेरिएंट पड़ा हुआ है एक स्टेप प्रीवियस वेरिएंट है. सो आई होप कि अब तक न्यू वेरिएंट रिलीज हो चुका होगा.
ठीक है, तो ये आपको वेस्प बहुत गाइड करता है। सो वेस्प एक ऐसी चीज़ है कि वेब पेन टेस्टर को लाजमी होनी चाहिए। ओके, सो टाइम टू टॉक अबाउट सम वेलिबिलिटी, सम टेक्निकल स्टफ। सो मैं just पानी पी लूं। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आइडोर। मैं वैसे एक बार स्लाइड का साइज इंक्रीज करके चेक करता हूँ कि आई गेस काफ़ी छोटी है। ठीक है, आई गेस वी आर स्टिल गुड टू गो। हाँ, ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ साइज। ओके, सो आइडोर में होता क्या है? वाई आइडोर? सबसे पहले तो बात है कि हम पहली वेलिबिलिटी आइडोर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बिकॉज आइडोर इज समथिंग कि जो एक जिस एप्लीकेशन के जिसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं, वो विदाउट नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग, वो इजीली आइडोर जो है फाइंड आउट कर सकता है। सबसे जो इसकी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, आइडोर बेसिकली है क्या? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो सिमिलरली जैसे हमने बात की थी आईटी वर्सेस सिक्योरिटी की, तो हम पहले देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपका एक यूज़र अकाउंट बनाते हैं या आपने कोई पोस्ट की है, तो पोस्ट की ज़्यादा बेटर एग्जांपल है। पोस्ट में ना एक आपको मिलता है यूआरएल में या कहीं ना कहीं पोस्ट आईडी, या जो आपने कमेंट किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको लाइक मिल जाता है मोस्टली कमेंट आईडी के नाम से। सो कमेंट आईडी से क्या होता है कि उस आईडी के ज़रिए आप डायरेक्ट जो वो वाला कमेंट है उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपको वो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो कि उस स्पेसिफिकली उस पोस्ट का, उस यूज़र का, डॉक्यूमेंट का, उस कमेंट का, उससे राइट लाइक या कोई रिएक्ट हुआ होता है, उसका भी एक प्रॉपरली एक ऑब्जेक्ट बनता है। और उस ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू होती है, आईडी होती है, कोई की होती है, आप उसके ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस कि अगर आप उस वैल्यू को चेंज कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ चैट की है एंड देन जो आपकी चैट हुई भी है उसका एक यूज़र आईडी क्रिएट हुआ है, और अगर आप अपने यूज़र आईडी के वैल्यू को चेंज करना शुरू कर दें एंड यू एक्सीडेंटली फाइंड आउट माय चैट आईडी, ये जो मैंने मैसेज किया है आप उसकी आईडी आपको मिल जाती है, सो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट? आप सोच सकते हैं कि आप उसको यूज़ करते हुए मेरे मैसेजेस देख सकते हैं, या मैंने कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर किया है, आपको उसका आईडी मिल जाता है, आप ऊपर से वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट शो हो जाता है। अगर तब आपको शो हो जाता है कि जो आप अलाउड नहीं थे उसको देखने के लिए बाय द रूल ऑफ बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन, सो दैट इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है बट अब वो इनसिक्योर हो चुका है। सो दैट इज बेसिकली आइडोर। सो आपको समझ आ गई होगी। तो आइडोर में क्या होता है कि आप बेसिकली इन ही रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करके आप दूसरे यूजर के साथ यूजर यूजर का डेटा जो होता है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एंड रिमेंबर, वही डेटा कि जिसका एक्सेस यूजर के पास आपके पास देखने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर आईडी को चेंज करते हैं, किसी दूसरे बंदे की या फेसबुक की प्रोफाइल खुल जाती है और आप नॉर्मली भी वही प्रोफाइल खोल के वही डेटा देख सकते हैं। सो ये कोई बग नहीं है, क्योंकि ये तो आप एप्लीकेशन में नॉर्मली भी देख सकते हैं। बट आपने किसी को कोई पिक्चर भेजी है एंड देन मैं वो यूज़र आईडी यूज़ करके आपकी प्राइवेट पिक्चर देख सकता हूँ कि जो नॉर्मली मैं आपकी प्रोफाइल खोल के एप्लीकेशन में नहीं देख सकता। दैट इज एन इम्पैक्टफुल आइडल। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अनऑथोराइज एक्सेस होता है। सो कुछ वेलिबिलिटीज होती हैं जिनके टाइटल आपको मिलते हैं। सो नॉर्मल जो टाइटल आपको मिलते हैं वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, अनऑथोराइज एक्सेस, एक्सेस कंट्रोल, वायलेशन, जो टेक्निकल वर्ड मोस्टली मैं अपनी रिपोर्ट में यूज़ करता हूँ, दैट इज मोस्टली एक्सेस कंट्रोल वायलेशन। सो और इस तरह की काफ़ी वेलिबिलिटीज़ के इम्पैक्ट हैं, ठीक है, जो आपको आइडोर के जरिए अचीव हो सकते हैं। बट रिमेंबर कि आइडोर जो होता है वो मोस्टली मोस्टली यही होता है कि जो क्लाइंट साइड होती है, ये जो यूज़र साइड होती है वो उसके इम्पैक्ट होता है। सो इसके कॉजेज जो होते हैं, ठीक है, या जो आपको मोस्टली केसेस जो आपको उसके मिलते हैं वो क्या होता है कि वो इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होता है, आपका एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, यूज़र की जो इनपुट होती है वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं की जाती, सेशन जो आपको दिया हुआ होता है वो मैनेज नहीं किया जाता, यानी जो आपका सेशन है उसी के का जो डेटा है वो आपको मिले, आपके अपने सेशन से हटकर किसी का डेटा शो नहीं होना चाहिए। सो आइडर जो होता है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट में हो सकता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि गेट रिक्वेस्ट जो है और पोस्ट रिक्वेस्ट,
इनमें अगर हमें आइडोर मिलता है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या है? अगर जो गेट रिक्वेस्ट है, हमने पढ़ा कि ये डेटा फेच करने के लिए यूज़ होती है। सो गेट रिक्वेस्ट का अगर आपको आइडोर मिलता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी का अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस करें, आप यूज़ कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। जो होता है पोस्ट में आइडोर, पोस्ट में आइडोर के क्या मतलब होता है कि उसमें मोस्टली ये होता है कि आप किसी के बिहाफ पर डेटा भेज रहे हैं सर्वर को। सो फॉर एग्जांपल कि आपने किसी का कमेंट किया है और कमेंट में आपने अपनी यूज़र आईडी हटाकर किसी और की यूज़र आईडी डाल दी है। सो उससे क्या होगा कि वो कमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे नहीं बल्कि किसी दूसरे यूज़र के बिहाफ पे हो जाएगा कि जिसकी आपने यूज़र आईडी डाली है। सो हम नीचे रिक्वेस्ट में देख भी सकते हैं कि जो HTTP रिक्वेस्ट है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंड एक ओरिजिनल फॉर्मेट है HTTP रिक्वेस्ट का। तो इसमें जो पहला हमारे पास है /webgoat/idor/profile, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास आईडोर के अंदर कुछ वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही है, या हमारे पास कोई भी एक ऐसा हम लोग वेरिएबल जो है वो चेंज करते हैं कि जिसके बाद क्या होता है कि हमारे पास पर जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाती है। सो दैट कुड बी यूज केस ऑफ आईडोर। सो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि जो हम लोगों ने आईडोर फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि जिससे आपको समझ आएगा कि एक रियल लाइफ में आईडोर कैसा होता है या आपको कैसा आईडोर मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग टाइटल पढ़ते हैं इसका। टाइटल क्या है कि एनीवन अकाउंट टेक ओवर विदाउट यूजर इंटरेक्शन वाया द आईडोर। आप अब इसके इम्पैक्ट कंसिडर कर सकती हैं कि आप किसी का भी यूजर अकाउंट जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं बगैर उस यूजर को पता लगाए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमें मिला था आईडोर। तो इस आईडोर से हम लोग क्या एक्सप्लोर कर सकते थे, डिपेंड ये कर रहा होता है। तो इससे हम लोग क्या एक्सप्लोर कर सकते थे कि हम किसी का भी अकाउंट जो है वो पक्का पक्का ऑन कर लेंगे। सो इसमें क्या होता है कि आप जो है वो हमने क्या काम किया था कि हमने एक फंक्शनैलिटी देखी कि जिसमें आप अपनी ईमेल जो है वो चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपकी ईमेल है, मिसाल देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ईमेल लिखी हुई है इस एग्जांपल में वो shriya33@bgcloud.ninja.com, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम हंट कर रहे थे। तो अब क्या था कि हमारी ईमेल जा रही थी, अब हमने बैठकर HTTP रिक्वेस्ट को देखा, अच्छे से पढ़ा कि वो जा कैसे रही। सो उसमें जो हमें चीज़ मिली काफ़ी इंटरेस्टिंग वो ये थी कि जब हम लोग ईमेल चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्टन एक स्टेप की फॉर्म में होते हैं। आपके पास पहला स्टेप आता है, देन आपके पास दूसरा स्टेप आता है, देन तीसरा स्टेप आता है। पहले स्टेप में वो क्या काम करता है कि वो आपके बिहाफ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर की तरफ, एंड देन वो कहता है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपनी ईमेल चेंज करना चाहता है, और साथ आपकी ईमेल भी भेजता है, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट में कि ये उसकी अकाउंट की प्रीवियस ईमेल है, इसको वो चेंज करना चाहता है। देन वो सर्वर आपको रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब आपको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स में वो एक फॉर्म बना के भेजता है जिसमें वो कहता है कि जो आपकी नई ईमेल है आप वो डालें। आप नई ईमेल डालते हो, ठीक है, देन उसकी रिक्वेस्ट जाती है, एंड देन उस ईमेल पे आपको कंफर्मेशन कोड आता है, आप वो कोड उसमें डालते हो, एंड देन क्या होता है कि आपके ईमेल जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आप न्यू ईमेल के थ्रू जब अकाउंट खोलते हैं तो आप जो है वो उस अकाउंट अपना एक्सेस कर लेते हैं। अब हमने इसमें आईडोर से एक्सप्लॉइट किया। आईडोर में कैसे एक्सप्लॉइट किया, जब हमने रिक्वेस्ट पहली बार की कि हमने जो है वो अपना ईमेल चेंज कराना है, तो वो ईमेल उसने रिक्वेस्ट बनाई, क्रिएट की कि भाई ये इसका प्रीवियस ईमेल है पहले वाला, एंड इस अकाउंट का हमने चेंज करना। सो हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया एंड हमने अपना ईमेल चेंज करके एक यूज़र एक और था, हमने उसका ईमेल डाल दिया। सो उसका ईमेल डालने के बाद क्या हुआ, जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट की तो सर्वर ने प्रॉपर्ली वैलिडेट ही नहीं किया, नहीं एक एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड था। तो उसने हमारी ईमेल के जगह जो हमने किसी और यूज़र का ईमेल डाल दिया, उसने उसके बिहाफ पर जो है वो रिक्वेस्ट चेंज करना शुरू कर दी उसका अकाउंट का ईमेल, और उसने हमें एक फॉर्म दिया कि जो हमने फिल करना था। तो हमने क्या काम किया, अपना नया ईमेल डाला और हमारे ईमेल में कोड है, हमने जब वो कोड फिल किया तो क्या हुआ कि जो हमने ईमेल चेंज करके डाला था जिस यूज़र का, उसके अकाउंट का ईमेल चेंज हो गया और उसकी ईमेल की जगह हमारा ईमेल आ गया। अब हमें उसका पासवर्ड नहीं पता था तो हमने फॉरगॉट पासवर्ड किया, और फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद हमने उसका अकाउंट टेक ओवर कर लिया। जिससे क्या था कि ईमेल हमारा आ गया, पासवर्ड हमारा आ गया, बट अकाउंट उसका है। तो आपको समझ आ रही है कि आईडोर जो है वो कैसे इंटरेस्टिंगली जो है हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सप्लॉइट किया।
देन उसकी एक और हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जो आपको समझ आएगी कि रियल लाइफ में और बग पॉसिबल कैसे निकलते हैं। सो हमारे पास क्या है कि एक यूज़र था, ठीक है, आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि आप जो है उस अकाउंट का डेटा फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो आप जो होता है वो पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह सारे डाल चुके होते हैं। देन लॉगिन आप कर चुके होते हैं, देन आप बाकी का डेटा उसमें ऐड करते हैं। बाकी के डेटा में क्या था कि आप उसमें एक पेज ऐसा आता है कि जिसमें आप सेंसिटिव डेटा डालते हैं, लाइक आपका फ़ोन नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इसमें, वो आ जाते हैं। एंड देन आप सबमिट करते हैं और आपको नया पेज आ जाता है। उस नए पेज में फर्दर और डेटा है, आपकी फर्दर प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप रहते कहाँ पे हैं वगैरह वगैरह। जब आप बैक करते हैं ना उसको एक स्टेप, तो आप अपना प्रीवियस डेटा व्यू कर सकते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से डेटा सबमिट कराया है। हमने वहाँ पे देखा, मुझे वहाँ पे मतलब हमें इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। उसमें ये था कि जब हम वापस आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो होता है वो फॉर्म आईडी होता है ऊपर। हमें फॉर्म की एक आईडी वहाँ पे दी हुई थी कि जिस फॉर्म की आईडी में वो डेटा हमें शो हो रहा है, ठीक है, जो हमने सबमिट करा दिया फॉर्म, हमें उसका डेटा वापस शो करने के लिए। तो हमने क्या काम किया कि उस आईडी का डेटा, हमने आईडी की वैल्यू चेंज करना शुरू कर दी। अब आईडी मिसाल देते हैं कि 2786, तो हमने उसको 86 से 87 किया, हमने 86 से उसको 85 किया। जब हमने 85 किया, तो हमसे जो पहले जिस यूज़र ने अपना सेंसिटिव डेटा सबमिट कराया था, उसका कंटेंट, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हमें शो होना शुरू हो गई। सो हम जैसे-जैसे जो होता था यूज़र आईडी चेंज करते जाते थे उस पेज के ऊपर, तो हमें जो है वो डिफरेंट से डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती थी वहाँ पे। तो इससे क्या था कि हमें जो है वो काफ़ी डेटा मिलना शुरू हो गया था, वो डेटा कि जो बाय एप्लीकेशन हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। सो इस वजह से हमने इसको क्या टाइटल दिया कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोज़र वाया द आईडोर। सो अब आपको समझ आ रही होगी कि जब आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो आप एक्सप्लॉइट करके आप उसके इम्पैक्ट पे जाते हो कि ये एक्सप्लॉइट करने से मुझे क्या इम्पैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या इम्पैक्ट मिल रहा है कि हमारे पास सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सपोज हो रहा है। प्रीवियस में क्या था कि हमारे पास अकाउंट टेक ओवर है विदाउट यूजर इंटरेक्शन, इसी आईडोर के थ्रू। अब दोनों में आईडोर है, बट इम्पैक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो एक समझ आ रही होगी। एक हैकर वन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मुझे ये चीज़ मिली है कि जो सबमिटेड टू 3 ईयर पहले की है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वो स्मूथ थी। सो हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, बट हम देख सकते हैं कि टाइटल, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, आपकी शायद रिक्वेस्ट जब आपको समझ आ जाएंगी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैं, रिस्पॉन्स होती कैसे हैं, आप जब इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। बट हम देख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या है कि आईडोर अलाउज एक्सेस टू पेमेंट डेटा ऑफ एनी यूज़र, यानी जिस जिस यूज़र ने नोड सिक्योरिटी को पेमेंट की है उसकी पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कुछ सेंसिटिव डेटा भी है हमारे पास, इंक्लूडिंग पेमेंट डेटा इटसेल्फ भी सेंसिटिव ही होता है, क्योंकि आप किसी यूज़र के पास या किसी यूज़र के बिहाफ पे वो डेटा देख नहीं सकते, ठीक है। ओके, सो क्या है कि आप सिंपल पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्स आता है, और उसने क्या काम किया कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी का एक वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसने उन वैल्यूज़ को चेंज किया है। सो वो वैल्यूज़ को चेंज करने से क्या हुआ है कि आपके पास जो है वो दूसरे यूज़र का डेटा जो है वो आना शुरू हो गया, जो कि आप यूज़र अंडरस्कोर आईडी को चेंज कर रहे हो बार बार। सो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक आइडोर वल्नरेबिलिटी है। तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि आइडोर क्या है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग। सो क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग भी जो है वो भी एक टाइम पे नंबर वन, और अभी भी जो है वो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के अंदर मौजूद है कि जो कि फाइंड आउट होती है। एंड इवन के जो बग हंटिंग करते हैं, सो बग हंटिंग एक्सएसएस पे बहुत काम करते हैं। मोस्टली जो बड़े एक्सपर्ट हैं एक्सएसएस के, उनसे मेरी बात हुई है या उनसे मैंने इवेंट उनके अटेंड किए, सो दे ऑलवेज सेड कि एक्सएसएस इज एवरीवेयर। सो एक एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सएसएस इज ऑलवेज एवरीवेयर। सो मैं जस्ट पानी पी लूँ क्योंकि आपको पता है रोज़ हैं। सो हम जस्ट एक 10 सेकेंड्स की ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज। ओके,
सो सेशन जो है वो लाइक probably we are expecting 20 minutes more or maybe to 25. Okay, so बस कुछ ही स्लाइड रहेगी, बट द स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. Okay, time to get back to the point. So we were talking about XSS. So क्रॉस स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. आपको लाइक एक्सेस जो है ना वो बग हंटिंग अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर स्पेसिफिकली अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है. So what happens in the XSS is, अगर हम पिक्चर के अंदर भी देखें, so what attacker does is कि attacker tries to damage the client side. So in the programming languages, we mostly have the XSS in the JavaScript. So XSS होता क्या है बेसिकली, हम ये भी कह सकते हैं कि XSS एक JavaScript इंजेक्शन होता है. So in the web application, what is the main role of JavaScript? So JavaScript mainly handles the client side authentication and the session management. So जो कुछ भी client side पे यानी यूजर एंड पे हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आपने फेसबुक पे कोई ना कोई चीज़ पोस्ट की है, या मैंने पोस्ट की है, आपने उस पर रिएक्ट किया. सो हाउ डज फेसबुक नो कि आपने जो जो इस पे इंटरेक्शन आया है, जो ठीक है लाइक आया है, वो आप ही ने किया है. कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका जावास्क्रिप्ट होता है वो आपका एक ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेज कर रहा होता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है. सो आप जब उस आइडेंटिटी की बिहाफ पे जब आप कमेंट करते हैं, या जो लाइक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो आपके बिहाफ पर ही सबमिट होता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाइंट साइड स्टफ द सेशन वगैरह. तो ये सारे मैनेज होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू. So what happens is कि the attacker tries to find out the cross scripting vulnerability in the application. अगर तो उसको मिल जाती है, सो उसको यूज करते हुए वो मल्टीपल यूजर्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनको डैमेज करता है. जिससे क्या होता है कि जो जो यूजर उस वेब पेज को विजिट करता है, जो जो यूजर विजिट करता है उसे, उसका जो एक्टिव सेशन होता है वो कॉपी होकर जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू वो सेंड हो जाता है अटैकर को. तो अटैकर क्या काम करता है कि उस सेशन को उठाता है, उस सेशन को वो यूज़ करता है, एंड वो पासवर्ड के बगैर अकाउंट में खुल जाता है. मतलब उसके पास पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है अकाउंट वो डायरेक्टली खुल जाता है. अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूँ ना, तो आप जो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, सो मोस्टली क्या होता है कि आप पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं. सो समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल समवन आस्क मी एंड मैं पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहता. सो व्हाट आई विल डू दैट, यूजिंग जावास्क्रिप्ट आई विल शेयर दिस माय सेशन, जो मेरा क्लाइंट साइड सेशन है. तो मैं क्या काम करूँगा, मैं आपको अपना पूरा सेशन कॉपी करके दे दूंगा. आप अपना सेशन जो होगा वो रिमूव करोगे, और आप मेरा सेशन वहाँ पे ऐड कर दोगे. जब मेरा सेशन ऐड करके आप दोबारा से वही वेब पेज खोलोगे, तो मेरा पासवर्ड के बगैर आपके पास मेरा अकाउंट जो है वो खुल जाएगा. जिसके बाद जो है वो आप मूवीज़ वगैरह आपने जो भी देखनी है वो आप मेरे अकाउंट से देख सकते हैं. सो दिस इज़ द रियल लाइफ यूजेज कि जो हम लोग मोस्टली फॉर फन कर रहे होते हैं, बट एक अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है. सो एक्सेस कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए? सो हमने जस्ट अभी तक ये देखा है कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करना होता है समवेयर, एंड अगर उसकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाती है. देखो जावास्क्रिप्ट कोड दो तरह के, एक जो डेव है उसने लिखा है कि जिसने एप्लीकेशन बनाई है, और एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपका है. अब जो डेव ने लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, मगर जो आपने लिखे है वो क्यों एग्जीक्यूट होगा? आपके पास तो एप्लीकेशन राइट करने की एक्सेस नहीं है. बट अगर आप अपना जावास्क्रिप्ट भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एप्लीकेशन के बिहाफ पे, देन दैट इज अ सक्सेसफुल एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन. सो वे टू लुक दैट फॉर द एक्सेसेस. सो बेसिकली आप क्या काम करते हो कि आप हर एक इनपुट फील्ड, इनपुट पैरामीटर, या कोई भी ऐसा फॉर्म का टेक्निकल कोई भी पैरामीटर एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जा रहा होता है, कोई हेडर है जो आपके कंट्रोल में है. क्यों? क्योंकि कोई भी इनपुट फील्ड होगी, कुछ भी ऐसा इनपुट होगा कि जो आपके कंट्रोल में होगा, ओनली यूजिंग दैट यू कैन इंजेक्ट समथिंग. अगर आपके इनपुट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास तो इसकी एक्सेस ही नहीं है. सो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन पॉइंट. सो हमारे पास ये वाला एक इंजेक्शन पॉइंट है जो कि एक सर्च इंजन टाइप है, एंड इसमें कुछ सर्च करने के लिए इनबॉक्स है हमारे पास, सॉरी इनपुट बॉक्स है. सो व्हाट आई डू इज कि मैं एक वेब हैकर का मैं कीवर्ड. सो द बेस्ट प्रैक्टिस is कि आप एक सिंगल कीवर्ड चूज करो, ठीक है. सो सम पीपल यूज लाइक
बहुत ज़्यादा वो एक्स इकट्ठे डाल देते हैं, वो ए बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, या वो अपना एक स्पेसिफिक कीवर्ड नाम रख लेते हैं अपना, एंड उस नाम को वो बार बार उसमें यूज़ करते हैं ताकि सोर्स कोड में से उसको ढूंढना आसान हो। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेब हैकर। वेब हैकर करने के बाद क्या हुआ है कि इसने मुझे रिस्पॉन्स किया है कि सॉरी नो रिजल्ट वर फाउंड फॉर द वेब हैकर। ओके, नाउ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लाइक कंसिडर करने वाली चीज़ है, वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो जेड जो रिस्पॉन्स आया है उसमें वो कीवर्ड है कि जो आपने डाला है, यानी जो आपकी इनपुट थी, जो कि जो फिश थी आपकी, कि जो आप जो भी डालो आपने जो डाली है, जब रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो रिस्पॉन्स जो आता है वो पूरा का पूरा HTML का एक कोड होता है। HTML के कोड में एक इनपुट एक वैल्यू ऐसी आ रही है कि जो आपकी कंट्रोल में है। अब अगर मैं वेब हैकर की जगह में कुछ भी डालना चाहूँ तो यहाँ पे वो सामने कंटेंट वेब हैकर की जगह चेंज हो जाएगा। सो इट मीन्स कि HTML का जो रिस्पॉन्स कोड है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं इसके सोर्स कोड में देखूं कि इसके सोर्स कोड के अंदर है क्या, सो क्या है हमारे पास कि हमारे पास हम देख लें कि बी का टैग है, ठीक है, हमारे पास सारा HTML का एक कोड आएगा यहाँ पे, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, सिर्फ थोड़ा सा कोड मैंने क्रॉप किया उसका। सो उसके अंदर जो है हमारे पास वेब हैकर का जो कीवर्ड हमने डाला था वो सोर्स कोड का पार्ट बन के आ गया। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि सोर्स कोड समहाउ हमारे कंट्रोल पे है, एक उसका एक पॉइंट, सो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ सोर्स कोड चेंज कर सकें। हम लोग यहाँ पे अंदर कोई भी सोर्स कोड डालते हैं, अब जो आपका सर्च इंजन का ब्राउजर है, ठीक है, जहाँ पे सर्च इंजन चल रहा है, जहाँ पे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रही है, अब ब्राउजर को तो नहीं पता कि मैंने कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी नहीं करनी। वो जो भी HTML का कोड जो भी आता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है एंड आपको वो शो करा देता है। अगर वहाँ पे जावास्क्रिप्ट है तो वो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि अगर जो है वो हम लोग यहाँ पे कोई HTML का कोड डाल दें, अब हम ऊपर वाली स्लाइड में देख सकते हैं कि ये BR के टैग के अंदर है और मैंने लिखा था वेब हैकर। सो मैंने क्या काम किया कि मैंने वेब हैकर से पहले H1 के टैग डाल दिए। सो आई एग्जैक्टली नो कि H1 से क्या होता है कि वो हेडर, एक जो हेडिंग होती है वो बन के आ जाती है। सो मेरी इनपुट एज इट इज आई, एंड जब ब्राउजर ने उसको एग्जीक्यूट किया, सो ब्राउजर को समझ ही नहीं आया कि BR के टैग उनके टैग हैं जो सर्वर के हैं एंड H1 के टैग जो है वो मेरे टैग हैं। ब्राउजर ने देखा कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सो उसने इसको जैसा था उसने एग्जीक्यूट कर दिया। जाहिर बात है वो तो काइंडा एक HTML का आप यूँ समझ लें कि वो काइंडा एक कंपाइलर है, ठीक है। तो कंपाइलर को तो नहीं पता होता कि कोड में कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है, उसे तो एग्जीक्यूट कर देना। सो उसने एग्जीक्यूट किया एंड हम लोग राइट साइड इमेज में देख सकते हैं कि वेब हैकर का जो हमारे पास पेज है, सॉरी जो वर्ड है, वो हमारे पास H1 के टैग के अंदर आ गया। ओके, सो हम लोग इसकी एक्सप्लोइटेशन कैसे कर सकते हैं? जब हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो हमारी इनपुट कंट्रोल में है, हम लोग HTML का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट के हम लोग मल्टीपल पेलोड के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेलोड्स होते हैं। सो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे SVG का टैग डालते हैं, ठीक है, हमने इसको क्लोज बाद में कर दिया एंड हम लोगों ने ऑन लोड के अंदर एक जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन कॉल किया जो है कि पासवर्ड है। सो इसमें क्या है कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एक आउटपुट आ रही है, ठीक है। आउटपुट में क्या है, हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट जो हमने यहाँ पे इनपुट में डाला था वो एग्जीक्यूट हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट का फंक्शन आ गया। प्रॉम्प्ट जो फंक्शन जो है वो ऐसी आउटपुट देता है और प्रॉम्प्ट में आप जो भी पैरामीटर में उसको वैल्यू देते हैं वो यहाँ पे राइट हुई भी आती है। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट डालो तो आप जावास्क्रिप्ट पे सेव कर सकते हो सकता है कि जो अटैकर है वो यहाँ से यूज़र का पासवर्ड लेकर वो HTTP रिक्वेस्ट एक जनरेट कर दे हैकर के जो सिस्टम है उस पर, जिससे क्या होगा कि किसी का भी पासवर्ड जो है वापस से ले सकते हैं। बट मोस्टली आपके पास सेशन ऑलरेडी होता है तो आपको पासवर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि एक एक्सेस जो होता है वो एक्सप्लॉइट होता कैसे है। तो आपको याद रखना होता है कि जो एक्सेस जो है वो आपकी जो इनपुट है वो वापस बाउंस बैक होती है और वापस बाउंस बैक वो कहाँ पे हो रही है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो मेरे पास यहाँ पे जैसे आप ऊपर देख सकते हैं इमेज और SRC आगे दिया हुआ है, अगर जो मेरे पास SRC के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर ये वेब हैकर आ रहा होता, ठीक है, SRC के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये वेब हैकर लिखा हुआ था एंड मैंने जो यहाँ पे SVG का पेलोड डाला है ये मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो क्या होता
कुछ भी नहीं, क्योंकि एसआरसी के अंदर अगर ये पेलोड आ भी जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये किसी न किसी एग्जीक्यूशन की फॉर्म में नहीं है यहाँ पे आने के बाद। सो दैट्स वाई जो आपको यहाँ पे कोड लिखना होता है वो आपका कोड इसके हिसाब से बनाना होता है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या बनती है कि आप जो है वो एक इन्वर्टेड कॉमा डालें एंड आप इसके टैग को क्लोज कर दें इसके अंदर, जिससे क्या होगा कि वो ये समझेगा भी ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है जो आगे एंगल ब्रैकेट दी हुई है ये कोई फालतू है, एक्स्ट्रा हो गया। देन आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, ठीक है, एंड देन आप अगेन एक स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट डालते हैं, देन एक इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये इन्वर्टेड कॉमा वो इन्वर्टेड कॉमा मिलकर एक एम्पटी एट्रीब्यूट बन जाएंगे, एंड दोनों एंगल ब्रैकेट मिलकर एक एम्पटी जो है वो एक टैग बन जाएंगे। तो एक्सरसाइज को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एचटीएमएल के अंदर, आपको समझ आएगा कि आप पेलोड अकॉर्डिंग टू द बाउंस बैक इनपुट आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बट जो मेन हमारे पास 3 कॉन्टेक्स्ट जो एचटीएमएल में मोस्टली देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपका एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट होता है। अब हमने जो यहाँ पे देखी थी, ठीक है, अब हमारे पास जो इनपुट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, ये वाली इनपुट हमारे पास है। सो हमारे पास अगर एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट में आ रही है वैल्यू, तो दैट इज हमारे पास क्या है कि हमारे पास S1 का टैग फॉर एग्जांपल है, ये वाली चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि हमारे पास ऊपर वाली स्लाइड में भी हमारे पास थी। हम यहाँ पे भी देखते हैं तो ये बी के टैग में है, तो ये डायरेक्टली टैग्स के अंदर पूरी वैल्यू आ रही है, तो दैट इज एचटीएमएल कॉन्टेक्स्ट। एंड वी हैव द एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट। एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जब ये किसी टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट की फॉर्म में होती है, एचटीएमएल में अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग के अंदर, ये उसके अंदर इनपुट आ रही है। फॉर एग्जांपल सेकंड केस में जो हमारे पास एक्सेस की जो वैल्यू दी हुई है, जो इनपुट है, वो कहाँ पे आ रही है, वो IMG आगे SRC की जो वैल्यू है इसके अंदर आ रही है। इससे क्या हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी टैग डालते हैं SVG का, वो रन नहीं करेगा। सो फॉर दैट पर्पस जो है वो हमें जो है वो कोड पेलोड इसके हिसाब से डालना पड़ेगा। सो वी कैन ट्राई आउट सम दिस काइंड ऑफ टैग, ठीक है। अगर मैं इस तरह का एक टैग डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अलर्ट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ फॉर इजी। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग इस इनपुट को यहाँ पे डाल के एक बार ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज की जगह अगर मैं ये इनपुट ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि इमेज के टैग अब शुरू हुआ है। अब जब ब्राउजर के मैं बिहाफ से देखता हूँ कि जब ब्राउजर इसको रीड करेगा तो वो कैसे रीड करेगा। ब्राउजर कहता है कि इमेज के टैग स्टार्ट हुए, देन SRC आया, SRC के अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमर्स की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब है कि SRC एम्प्टी है, एम्प्टी होने के बाद टैग क्लोज हो गया, देन नया टैग खुल रहा है SVG का। SVG का कोई भी पाथ SRC नहीं दिया हुआ, सो लिहाजा एक एम्प्टी SVG बनाना है। उसमें ऑन लोड है कि जब SVG में लोड करूंगा तो मैंने क्या काम करना है कि मैंने जावास्क्रिप्ट का ये वाला फंक्शन जो है मैंने इसको कॉल कर देना। कॉल करने के बाद मेरे पर टैग क्लोज हो चुका है SVG का, देन एक नया टैग शुरू हो रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, एम्प्टी अगर इसमें एट्रीब्यूट है, एंड वो टैग क्लोज हो चुका है, जिसकी वजह से इसको एग्जीक्यूट करें ना करें एक ही बात है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा जिसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस पेलोड की वजह से क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक सही मानों में एक जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हुआ है। बट अगर जो है वो मैं यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू डायरेक्टली मैं डाल देता, तो इसके अंदर मैं जो पेलोड है वो एज इट इज डाल देता, तो उसका कोई भी फायदा नहीं था। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने पेलोड कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे बिल्ड करना होता है। देन वी हैव द जावास्क्रिप्ट वैल्यू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें क्या होता है कि वो जावास्क्रिप्ट में किसी न किसी वैल्यू की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा होता है। सो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में जब आता है तो आपको जावास्क्रिप्ट का कॉन्टेक्स्ट ब्रेक करने की भी टेक्निक आनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट टेक्निक होती है। सो आप जितना जावास्क्रिप्ट को, जितना HTML को स्टडी करते हैं, उतना आपको जो है वो एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन में हेल्प आउट करता है, क्योंकि इसमें मोस्टली प्रोटेक्शन फायरवॉल भी होती है, एंड देन आपने जो बाईपासिंग या सैनिटाइजेशन होती है उसके हिसाब से आपने पेलोड खुद बिल्ड करना होता है। तो आपको क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका जो बेस्ट पेलोड है दैट इज दिस वन। इससे क्या होगा कि अगर मैं इस इनपुट को कॉपी करता हूँ एंड देन मैं एक्सेस की जगह पे डालता हूँ, तो क्या हुआ कि इसने क्या काम किया कि x की वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ से शुरू की, आगे हमारे पास जो है सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, ये बेसिकली ऐसे, ये एक राइट कॉन्टेक्स्ट है इसका, ये इसका, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक ही नहीं कर रहा था, तो जिस ओके दिस वे।
सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेरिएबल वैर है, ठीक है, इसमें एक वैल्यू आ रही है। अब वो जावास्क्रिप्ट ये जो कोड होगा वो कैसे ब्राउजर रीड करेगा, वो कहता है कि वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुई है एंड इस इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू डेफिनेटली ख़त्म हो गई है। देन उसने डैश डाल के माइनस का साइन डाल के उसने उस लाइन को किया ब्रेक, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हो सकता है कि वो किसी वेरिएबल की वैल्यू फेच कर रहा हो यहाँ पे एंड फेच करके वो इस लाइन के अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है यहाँ पे। देन अगेन माइनस है, यानी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो हमने कोड डाला है वो ख़त्म हो चुका है। एंड देन यहाँ पे आगे एम्प्टी का ब्रैकेट्स मतलब कॉमर्स हैं, जिसमें क्या है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। सो अब अलर्ट, ठीक है, सॉरी टोटल प्राइस एंड देन अलर्ट की वैल्यू जहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, भले ही उसमें वैल्यू कुछ हो ना हो, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में तो एम्प्टी वैल्यू आएगी। बट अगर हम कुछ चीज़ फैच कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसका पार्ट बन जाए, या हम लोग इसमें सेपरेटली जावास्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ऐसे ही मल्टीपल और भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं। समटाइम होता है कि वो एक CSS के कॉन्टेक्स्ट में आ रही होती है, ये और भी मल्टीपल होते हैं। आप जितना स्टडी करेंगे तो आपको जो है वो उतना ज़्यादा उसका आइडिया हो जाएगा। सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो देन लास्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जिसको हम लोग थोड़ा सरसरी से देखेंगे कि इसमें है क्या, बिकॉज हमने जो है वो टाइमली चीज़ों को करना है कवर। सो एस एस आर एफ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वेलिबिलिटी है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर एच की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मुझे करते हैं रिक्वेस्ट, एच मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, आप उस पर रिक्वेस्ट करते हैं, आई एग्जैक्टली नो कि रिक्वेस्ट आपने की है। बट फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप example.com को रिक्वेस्ट करते हैं एंड आप नोट करते हैं कि वहाँ पे एक वेरिएबल है कि जिसमें एक URL है और वो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। इसकी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो कुछ वेबसाइट्स में आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी CV वगैरह ड्रॉप करें, उसमें वो कहता है कि आप CV की फ़ाइल अपलोड करें या मुझे उसका जो लिंक है वो दे दें वहाँ पे। आप जब वहाँ पे लिंक देते हैं तो क्या होता है, जो वो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है वो उस लिंक पे जाके चेक करती है, अपनी HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करती है एंड वहाँ से CV डाउनलोड करने की कोशिश करती है। तो सिमिलरली आप ये सोचें कि अगर उस CV में लिंक की जगह आपका जो अपना सिस्टम है, अगर आप उसका लिंक डाल दें तो क्या होगा। अगर आपने अपने सिस्टम के अपनी वेबसाइट के लिंक डाल दिया वहाँ पे, तो वो रिक्वेस्ट उसकी जगह आपको आएगी। एंड अगर आप वहाँ पे रिक्वेस्ट के या लिंक के साथ साथ आपने और वेरिएबल या जो चीज़ें वगैरह होती हैं आपने वो भी डाल दी हैं, तो क्या होगा कि वो सारा जो डेटा आपने सबमिट कराया है उसको उस डेटा के साथ क्या काम करेगा कि वो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट कर देगा। अब रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, सर्वर जो होगा ना, जो मेरा सर्वर होगा, उसको ये नहीं दिखाई देगा कि रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, उसको ये दिखाई देगा कि रिक्वेस्ट जो है जो example.com है वो कर रही है। अब देखो इसमें एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबिलिटी क्या है। पहली बात ये है कि हो सकता है कि मेरी वेबसाइट पे कोई वेलिबिलिटी हो कि जो आप एक्सप्लॉइट कर रही हो, और आप कैसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं, आप example.com को यूज़ कर रहे हैं, आप example.com के बिहाफ पे रिक्वेस्टें जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और इससे कोई डैमेज हो रहा है। हो सकता है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एडमिन का जो पैनल होता है वो इंटरनली पड़ा हुआ होता है, इंटरनल सर्वर होने की वजह से वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। मगर अगर आप HTTP रिक्वेस्ट में किसी तरीके से उसको इंटरनली आप जब कहीं भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए तो इंटरनल है ना, उसके लिए तो एक्सेसिबल है, हमारे लिए नहीं है। तो चूंकि इसमें क्या होता है SSRF में कि जो रिक्वेस्ट होती है वो जो सर्वर होता है वो उसकी बिहाफ पे होती है, तो आप उसके लोकल होस्ट को या जो आप उसके लोकल में जो आपके पास होता है सर्वर मौजूद है या जो वेबसाइट या एप्लीकेशन एडमिन पैनल चल रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, सो उनको रिक्वेस्ट करने के बाद जो डेटा कलेक्ट वहाँ से होता है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। सो SSRF जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज में SSRF की अवेलेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। सो आपको समझ आ रही होगी कि अब SSRF होता क्या है। इन शॉर्ट कि SSRF किसी दूसरे सर्वर के भी बिहाफ पे HTTP रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ को, कि जो कि मोस्टली इंटरनल सर्वर को हो जाती है। इसमें जो मोस्टली पेलोड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इनपुट किसी फील्ड में, किसी पैरामीटर में, किसी वेरिएबल में, कि जहाँ पे हमें चांसेस हैं कि जो हमारी इनपुट फील्ड है वो वहाँ पे जा रही होगी या रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है इसकी बिहाफ पे, तो आप मोस्टली लोकल होस्ट को कर सकते हैं। लोकल होस्ट 80 को करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर लोकल पे कोई वेब की सर्विस या कोई वेब का पोर्टल पैनल चल रहा है तो उसको एक्सेस करने में आसानी होती है। देन क्या होता है कि आप लोकल होस्ट 127.0.0.1 भी होता है, ठीक है, या कोई इंटरनल सर्वर का कोई और स्पेसिफिक लिंक है तो आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन ये होता है कि समटाइम कि आप लोकली उसको IP की रेंज भी कर सकते हो।
लाइक फॉर एग्जांपल कि 192.168.0.10 है, तो आप यहाँ पे .1 से लेकर .255 तक जो है वो आप रिक्वेस्टिंग कर सकते हो, और आपको हो सकता है कि किसी न किसी आईपी के ऊपर कोई पॉसिबल पोर्टल मिल जाए। हो सकता है कि एक बार आपकी अपनी वेबसाइट ही होस्टेड हो और बाकियों पे जो है वो आपके इंटरनल पे मिल जाएंगे। समटाइम जो भी होता है कि आप जो लोकल फाइल्स होती हैं आप उनको भी एक्सेस कर लेते हो। लाइक जिस तरह से फाइल का होता है, जो ब्राउज़र होता है ना, अगर मैं यहाँ पे भी ऊपर कोई फाइल का लिखूंगा या मैं कोई फाइल खोलता हूँ यहाँ पे भी ऊपर ब्राउज़र में अपने, तो मैं फाइल और आगे 3 डॉट ऐसे लिखता हूँ तो वो तब भी होता है। तो अगर वो इस तरह से करके रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप कोई ना कोई फाइल जो है वो रीड कर सकते हो। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है, जो शेल होता है, शेल के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा होता है। सो आप अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो और आप जो स्लैश के आगे जो डेटा डाल रहे होते हो उसमें आप कोई ना कोई कमांड एग्जीक्यूट कर देते हो, और कमांड एग्जीक्यूट करने से क्या होता है कि वो कमांड एग्जीक्यूट करके उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो उठाकर आपके सर्वर पे भेज देता है, कि जिससे आप क्या काम कर सकते हो, ना सिर्फ डेटा देख सकते हो बल्कि कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। सो ये इसके मोस्टली पेलोड्स होते हैं कि जिनको आप मोस्टली यूज़ कर सकते हो। तो इट्स इवन के गुड प्रैक्टिस कि अगर आप हर एक पैरामीटर में भी ये पेलोड डालते हो तो तब भी आपको बेनिफिट होता है, आपको चांसेस होते हैं कि कहीं पे SSRF पड़ा हुआ है तो आपको वो मिल सकता है। सो वे टू लर्न दिस स्टफ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप पोर्ट स्विगर भी जा सकते हो। सो पोर्ट स्विगर इज़ अ वेरी गुड वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बेसिक से सीख सकते हैं, एंड आप इवन के वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो है क्या। एंड देन वी हैव सेवरल लैब्स फॉर इट, बहुत ज़्यादा लैब्स होती हैं इसकी। सो आप जितने भी टाइप के इश्यूज़ हैं सब के सब इश्यूज़ के ऊपर वो लैब परफॉर्म करके आप उसको हैंड्स ऑन कर सकते हैं। देन हमारे पास टूल्स भी होते हैं ठीक है इसके बहुत सारे, जो कि आपको पोर्ट स्विगर के ऊपर जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का टूल जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बगसूट पोर्ट शुगर कहिए तो आपको वहीं से वो डायरेक्टली मिल जाएगा। देन वी हैव द ट्राई हैकमी प्लेटफॉर्म। ट्राई हैकमी पे कुछ चीज़ें आपको फ्री बट मोस्टली आपको पेड मिलती हैं, बट इसकी सब्सक्रिप्शन इजंट दैट एक्सपेंसिव। सो आप जो है वो काफ़ी लो प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन अच्छी मिल जाती है फॉर अ मंथ, तो आप इसमें अपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी के स्किल जो हैं उनको अच्छा हैंड्स ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको नेक्स्ट जो इवेंट्स होंगे वी विल गेट हैंड्स ऑन दैट। आई वांटेड कि मैं आपको कुछ टूल के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बट इट्स ऑलरेडी 11:31। सो जो कल का सेशन होगा वी विल यूज सम टूल्स, सम हैंड्स ऑन स्टफ, एंड हम लोग काफ़ी जो है वो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे। एंड जो परसों की इवेंट होगा तो दैट विल बी इवन की मोर एडवांस, एंड हम लोग उस पर एक्सप्लॉइट राइट करने पे भी काम करेंगे। So how we can use and automate the stuffs, automate the tools, and write our own exploit against the web applications. So I hope the session was good. आपको कोई भी क्वेश्चन है जस्ट फील फ्री टू आस्क मी हियर, ओके। सो एंड इवन आपको इफ़ यू वांट टू फॉलो मी डू शेयर माय लिंक्स एज वेल। सो आपको सबसे पहले यू कैन फॉलो द सिक्योर पॉन जो कि मेरा स्टार्टअप है। सो बेसिकली ये जो ये इवेंट था दैट इज आल्सो विद collaboration with the secure pond. So we provide some like technical training, we provide some courses, certification, etc. So on the behalf of Secure Pond. So we are working currently on the services and mostly like on the courses and learning platform. So even we contribute a lot in the community in the form of events. So the first link is regarding that. You can follow my company profile. Then I have my own profile, my personal profile. Then I have the co-founder Manoj Jamil. Probably next event में she would be with us as well, and then even I have my WhatsApp number. अगर आप लोगों को LinkedIn पे या प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम होती है तो you can text me on WhatsApp. But just make sure कि you read the about, so that about आप एक बार देख लें ज़रूर ताकि जो है वो आपको टेक्स्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एंड जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कम्युनिकेट करना है, सो लिंक्डइन के एंड पे जो मेरा यूज़र नेम है सैयद अली ज़ैन 033, द सेम यूज़र नेम इज़ ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ओके। सो नाउ वी विल जंप टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर। मैंने प्रीवियसली पहले क्वेश्चन आंसर को इसलिए आंसर नहीं किया बिकॉज देर आर सेवरल क्वेश्चन के जिनके ड्यूरिंग सेशन जो है वो आंसर हो जाते हैं, बट ऑनेस्टली जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, सो आई विल ट्राई टू आंसर एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है किसी का, जस्ट मेक श्योर कि आप मुझसे पर्सनल प्रोफाइल पे आप पूछ सकते हैं। सो इज दैट इम्पोर्टेंट। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके जो क्वेश्चन है वो आप क्यूए का जो एक एरिया आप उसमें पूछें, बिकॉज इस चैट्स के अंदर जो है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर क्यूए के अंदर मेरे लिए जो है वो काफ़ी आसान है।
Okay, so the first question that we have is how to put an alarm system in the website when the data get hacked. So basically क्या होता है कि अगर आपका डेटा हैक हो रहा है तो हाउ डू यू नो इवन कि आपका डेटा हैक होता है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? सो टेक्निकलिटीज़ डेटा हैक करने में ये है कि अगर तो वो डेटा आपको कॉपी कर रहा है, ठीक है, इस टाइम टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, तो आप उसमें ट्रैफिक पे अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए बहुत सारी सीम के सॉल्यूशंस हैं, सॉक के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो उन टूल्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो आपको मल्टीपल उसमें बताता है। बट मोस्टली यही होता है कि वेब अलार्म जो होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी स्टफ होता है। तो आप नॉर्मली वेब सर्वर आपके अपने होते हैं, तो आप उसमें सौ के या आप इस तरह के सोल्यूशन वीपीएन बिल्ड करके आप उनको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेब पेन टेस्टिंग में टेस्टिंग करते वक्त किसी और के टूल यूज़ करना कैसा है? एनीवेज, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक बब सूट, या आप कुछ और अच्छे टूल यूज़ कर रहे हैं, so there isn't so much possibility कि ऐसा कुछ भी होगा, but you are using the GitHub, okay, GitHub tools, so honestly कि ऐसे बहुत सारे टूल देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब आप वल्नरेबिलिटी उस टूल के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी उठाकर जो ऑथर होता है वो उसको भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपसे पहले ऑथर जो होता है वो अपने बिहाफ पे उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है, या वो कंपनी को बता देता है। या ये होता है कि आप टूल डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टूल के अंदर हिडन कोई ना कोई वायरस होता है, तो जो वायरस आपके सिस्टम की एक्सेस खोल देता है। ओके, okay, so then we have is, okay, is there any resource where we can real bug bounty storage to get inspired? Sure, I'm just writing a link. मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी आपको आई गेस लिंक ठीक है, इससे बड़ी आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी कहीं से। एंड वेरी डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी सिक्योरिटी हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके दरमियान कुछ बहुत बड़ा लाइक आप कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है। तो डिफरेंस एंड इवन कॉन्टेक्स्ट और इवन क्या अगर आप प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, तो वो भी जो है वो सेम ही होता है। तो डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी के अगर आप बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा जो है ना वो प्रोटेक्टिंग जो है, लाइक आपका जो ओवरऑल साइबर स्पेस या आपका जो ओवरऑल जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को डील करता है। और जो अगर आप आईटी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो वो मोस्टली ये होता है कि लाइक आपका डेटा, आपके नोड्स की इंक्रिप्शन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा उसकी तरफ हो जाता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अपोजिट है। समटाइम ऐसा होता है कि कीवर्ड्स होते हैं कि जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए या डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ किए जाते हैं। तो आप जब ओवरऑल एक सिक्योरिटी के बारे में किसी नॉन टेक को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो यू माइट टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, इवन कि मोस्टली आईटी सिक्योरिटी। IT security more deals about communication, about the data, the infrastructure, the internals that you have, and internal key encryption and data protection, and इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली IT सिक्योरिटी के रोल में कंसिडर की जाती हैं। So what is websites use HTTPS instead of HTTP? So basically HTTP and HTTPS होता क्या है? हमने बात की है HTTP के बारे में कि HTTP is only the communication, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर तक एंड सर्वर से क्लाइंट तक की जो कम्युनिकेशन है दैट इज HTTP, ठीक है। तो HTTP एक मेजर प्रोटोकॉल है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा कोई बीच का बंदा देख ना सके, ठीक है, जो दरमियान में बैठा वो बंदा है जो कि उस ट्रैफिक को रीड कर रहा है, अगर तो वो रीड करने से उसको नहीं देख सकता, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज HTTPS। बट दैट डजंट मीन कि जो सर्वर उस कोड को या आपके वैल्यू को, डेटा को आपको यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो देख सकते हो उन्हें डेटा। तो अगर आप सर्वर जो है वो वेल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, या आपकी जो वैल्यूज इनपुट जा रही हैं उसका कोड वीक है, कोड इतना सिक्योर नहीं है, उसके अंदर जो है वो एक्सेस कंट्रोल चीज़ें अलाउड प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है कोड के अंदर, तो वो कोड की वजह से जो है ना वो वल्नरेबल होता है, उसमें सर्वर का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि जो सर्वर जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है दैट इज सिक्योर कम्युनिकेशन, और वो ओनली पॉसिबल होती है HTTPS के थ्रू। मगर और भी जितने भी इश्यूज होते हैं तो वो सारी आपकी गलती होती है, आपके सोर्स कोड की। तो इन चीज़ों को फैच करने या इनको फिक्स करने के लिए अल्टीमेटली आपको जो है अपना सोर्स कोड ही जो है वो करना पड़ता है। सो ओके, ट्राइंग टू लुक फॉर द मोर क्वेश्चंस इन द चैट अगर इसके अंदर हैं, बट आई डोंट नो कि इफ आई कैन फाइंड। तो किसी का अगर है क्वेश्चन तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। एंड बाकी अगर आप इसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सो आई हैव माय लिंक्डइन प्रोफाइल,
So they can communicate there or on my phone number. Feel free to text me. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर वेब पेन टेस्टिंग से पहले वेब डेव सीखनी ज़रूरी है? देखिए, इतनी ज़रूरी आप नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़रूरी है, बट आपको एटलीस्ट डीपली आइडिया तो होना चाहिए कि वेब काम कैसे कर रही है। जैसे वेब डेव में ना कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वेब पेन टेस्टिंग से पहले वेब डेव करते हैं, और वेब डेव में वो HTML में फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग वो इन चीज़ों को देखनी शुरू कर देते हैं। Instead, we have to be focused on the implementation and the functionalities. जैसे क्या है कि आप ऑथेंटिकेशन को कोड करते हैं एंड यू गेट एन आइडिया कि ऑथेंटिकेशन में कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो बैकएंड पे जा किधर रहा है, वो किसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। इससे क्या एडवांटेज होगा कि जब आप रियल लाइफ में कोई ऑथेंटिकेशन के या इस चीज़ों को ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को आप एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी इनपुट कहाँ पे जाएगी, या आपकी इनपुट जहाँ पे जाएगी वहाँ पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज पॉसिबली हो सकती है। ओके, तो इसका जो है ना वो आपको बेनिफिट सीखने का होता है अगर आपको वेब डेव जो है वो आती है। ओके, स्टिल ट्राइंग टू लुक फॉर मोर क्वेश्चन, बट इफ यू डोंट हैव एट द मोमेंट यू कैन इजीली टेक्स्ट मी।